Alright, welcome to the second lecture or the second part of chapter 6 Lines and Angles. This concept is based on two parallel lines. Parallel lines are those lines which never meet. And these parallel lines are cut by another line, and that line is called transversal. So this is parallel line, this is another parallel line, and this is called transversal. Transversal cuts the two parallel lines. That cut can be like this also. That cut can be straight also. All these are called transversals. Transversal. Transversal. तो दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बुलाते हैं. And when this transversal cuts the two parallel lines, there is a set of 8 angles which are created. How many? 8 angles. Carefully see which 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I'm removing the extra transversals so that you can focus on one transversal. One transversal cutting the pair of parallel lines create 8 angles. And today's story is the story of the relationship between these 8 angles. ये 8 angles के बीच में कौन से रिश्ते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So let AB parallel to CD, मतलब ये रेड लाइन AB parallel to CD and XY transversal. अगर दो लाइन पैरेलल है और तीसरी उसको कट कर रही है तो कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बुलाते हैं. अगर ये सिचुएशन है तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई वांट यू टू लर्न इज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम. ये कॉन्सेप्ट है. मतलब समझाता हूं अब. लेट्स से दिस एंगल इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये चार में से टॉप लेफ्ट वाला एंगल कौन सा है? टॉप लेफ्ट एंगल 1. तो the concept says corresponding angles are same means top left angle 1 and top left angle 5 are always same. ये कंपलसरी है जिसका प्रूफ बाद में मिलेगा, बट ये दो हमेशा सेम होते हैं. 1 is equal to 5. These are called corresponding angles. तो 2 क्यों रह जाए? 2 is equal to what? 2 is equal to 6. Why? Because they are corresponding angles and corresponding angles are always same.
4 is equal to, now you can easily guess, 8. Why? Because they are corresponding angles and corresponding angles are always same. So 4 or 8, bottom left, or last angle, bottom right, 3, is always equal to 7. This is the first concept you have to understand कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल में corresponding angles are equal, and corresponding angles are 1 is equal to 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 4 is equal to 8. I hope समझ में आया है. I have tried to go as slow as possible. इसमें वापस एक बार दिखाता हूं. Corresponding angles. When two parallel lines are cut by a transversal, 8 angles are created. And if those 8 angles are called A, B, C, D, E, F, G, H, then sum of them are equal. Corresponding angles are equal to one another. A corresponds to E. A is equal to E. B corresponds to F. B is equal to F. D corresponds to H. D is equal to H. And C corresponds to G. C is equal to G. These are called corresponding angles. And it's not necessary that the parallel lines have to be sleeping. Matlab, if the parallel lines are standing, then the transversal is sleeping. कोई फर्क नहीं पड़ता है. Still, these two are corresponding angles. 2, 6, 3, 7, 4, 8. 8 एंगल बनेंगे और corresponding angles are always equal. कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये नोटबुक पे कॉपी करो. पॉसिबली अगर पेंसिल कलर या स्केच पेन या 2 कलर की बॉल पेन है तो यूज इट, और नहीं है तो अलग अलग सिंबल बनाओ जैसे मैंने यहाँ पे बनाए थे. एवरीथिंग इज रिटन विद 1 पेन पर्पल, बट द सिंबल्स आर डिफरेंट. डैश डैश, ट्राइंगल, सर्कल, सॉलिड सर्कल एक्सेट्रा. डू समथिंग बट मेक श्योर के अलग दिखने चाहिए. Copy this, pause the video and copy this. This is the first concept for parallel line and transversal. AB parallel to CD and XY transversal. Second concept, AB parallel to CD, XY transversal, P and Q. लिखो AB पैरेलल टू CD एंड XY ट्रांसवर्सल. ये लिखा तो ही कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है. देयरफॉर कॉन्सेप्ट नंबर 2, एज पर टेक्स्ट बुक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने किया. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles are same.
तो अब हम आमने सामने कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे जेड फॉर्मेशन। ज ज ज ज ज जेड फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? जेड के अंदर के जो दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, एंड दीज टू एंगल्स विच आर सेम आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये भी सेम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कहाँ है इसमें? तो देखो ध्यान से, आई एम हाईलाइटिंग देम नाउ। पहले स्टैंडर्ड ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। Where is alternate interior angles? ये Z दिख रहा, और Z के अंदर कौन से दो एंगल है? 4 and 6. That's why angle 4 and 6 are same, and this concept is called alternate interior angles are same. But there is one more pair जो यहां है, 1 2 3 ऐसा, तो उसके अंदर का एंगल 3 and 5 are same. These are also called alternate interior angles are same. Generally, when I say alternate angles or alternate interior angles, तुम्हारे दिमाग में ये Z या ऐसा कुछ Z आना चाहिए. One more time, I'll show you alternate interior angles in this diagram. First, name all the angles so that it's easy to discuss. A, B, C, D, E, F, G, H. अब ढूंढो कि Z फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है. तो दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज अनदर पैरेलल लाइन. Z बन गया. देयरफॉर Z के अंदर का एंगल D और एंगल F, they are equal, and D is equal to F. They are called alternate interior angles are same. और दूसरा alternate interior angle का पेयर कहाँ है? It's like this. It's E and C. E is equal to C. Alternate interior angles are same. तो ये देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में चारों चार सेम थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में सिर्फ अंदर वाले. एंड थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, टेक्स्ट बुक में 4 है बट चारों कभी यूज नहीं होते, सो वी आर गोइंग टू यूज ओनली 3 बिकॉज इट इज इनफ to learn. AB parallel to CD. XY is the transversal. PQ. The 4 angles are 1 2 3 4 5 6 7
8 AB parallel to CD and XY transversal, तो ही कॉन्सेप्ट ट्रू है. Therefore the concept is, ये बहुत लंबा है. ये शॉट, ये क्यों मस्त शॉट मारो. क्रिकेट खेलते हैं तो काठियावाड़ी ऐसे कैसे बोलता है, ये शॉट मारो. तो ये शॉट एज सच लिखना अलाउड नहीं है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज सो लॉन्ग दैट सडनली आई फील लेजी टू राइट इट. देखो, we did corresponding angles. We did alternate interior angles. Alternate interior angles which are same. Corresponding angles which are same. और अब हम करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. यूज होता ही नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल मारो गोली. तुम्हारा लोड कम कर रहा हूं, बाद में देख लेंगे. इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ESSOT, ये सॉट. इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. क्या है ये कॉन्सेप्ट, डिटेल में देखते हैं अब. इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल किथे है उसको हाईलाइट करो, तो इथे है. ये रहा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे दो इंटीरियर एंगल कौन से है, तो 4 इज ऑन द लेफ्ट साइड and phi is on the left side and both are interior angles. So 4 and phi are called interior angles on same side of transversal. लेकिन इसका क्या, राजू और प्रभा. तो अरे राजू और प्रभा, अरे तो क्या राजू और प्रभा का क्या, राजू और प्रभा की एज सेम है. अच्छा ऐसे बोलो ना. वैसे एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 और 5 का क्या, वो सेम नहीं है. द कॉन्सेप्ट हैज अ ट्विस्ट. द कॉन्सेप्ट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. बोले तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का टोटल हमेशा 180 होता है. और ये कैसे याद रखोगे, तो C जब बनता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के अंदर के जो दो एंगल्स है उनका टोटल हमेशा 180 होता है. 4 and 5 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. विच साइड, लेफ्ट साइड. तो ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे भी कुछ होगा. हाँ, ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे एंगल 3 and 6 आर देयर. Therefore, you can also write angle 3 plus 6 is 180. Therefore, अगर इसको Z फॉर्मेशन करके याद रखते हो या S, इसको C फॉर्मेशन करके याद रखो. C के अंदर के दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. हमजा, एक और बार. This is very very important concept, so please stick to it, learn it nicely, copy it in notebook. A, B, C, D, E, F, G, H. 3 कॉन्सेप्ट सीखे, तीनों को मैं यहाँ पे टाइप करके लिख रहा हूँ.
corresponding angles, alternate interior angles, interior angles on same side of transversal. The identification clue for corresponding is nothing but alternate interior angles के लिए z होता है ऐसा, और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए दो टाइप के सी हो सकते. नाउ लेट्स फाइंड और स्पॉट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ए इज इक्वल टू ई, B is equal to F, C is equal to G, D is equal to H. These are corresponding angles. Corresponding angles are always equal. Alternate interior angles मतलब Z फॉर्मेशन के अंदर के एंगल्स. मैं ये डायग्राम बिगाड़ूंगा नहीं, बट टेम्पररी Z बना के दिखाता हूं. 1 2 3, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है. D इज इक्वल टू F, और दूसरी तरफ C इज इक्वल टू E. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. D इज इक्वल टू F, C इज इक्वल टू E. And interior angles on same side of transversal मतलब C formation, parallel line, transversal बन गया C. Therefore E and D are interior angle on same side of transversal. और ध्यान रहे बच्चों, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल नहीं होता. तो मास्टर जी क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है. E प्लस D 180, और दूसरा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इस तरफ है C F, and C plus F is 180. That's the concept. C and F are not equal. C plus F is 180. Pause the video and copy this. Let's do the same concept with numbers. Parallel line, ट्रांसवर्सल. अब मान लो कि दिस एंगल is 40. You can find out all other angles very easily. और ध्यान से देखते जाओ कौन से कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल्स. इफ दिस इज 40, then this is 140. We use the concept of लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन और एक ब्रांच हो तो ये दो एंगल का टोटल 180 होता है. तो एक 40 तो दूसरा 140. ये 40 तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 40, दूसरा एंगल मिल गया. वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और ये तो ये भी 140 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब ये 140 तो ये भी 140. कैसे? corresponding angles. These two are corresponding angles, so we use the concept of corresponding angles. ये 40
तो ये 40। वो कैसे? अगेन आई एम हेल्पिंग यू टू विजुअलाइज बाय हाईलाइटिंग दोज लाइन्स. कैन यू सी दिस Z फॉर्मेशन? और Z फॉर्मेशन के अंदर अगर ये 40 है तो ये भी 40 है. दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और 40 के सामने वापस 40 और 140 के सामने वापस 140. तो सब कुछ मिल गया. And we ended up using a lot of concept like linear pair, vertically opposite angle, corresponding angle, alternate interior angle, etc. But किसी और तरीके से कर सकते थे. चलो देखते हैं. इसमें C फॉर्मेशन यूज नहीं किया था. हम करते हैं पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल 30. 30 का वर्टिकली ऑपोजिट 30. आई यूज्ड वर्टिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट. और अगर ये 30 तो ये 150. ऐसे कैसे? ऐसे that I am using a concept of interior angles on same side of transversal. पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से जब C बनाते हो तो ये दो एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते. देयर टोटल इज 180. तो 30 से 150 मिल गया. कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. यस, सॉट. 150 का वर्टिकली ऑपोजिट 150. अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर ये 150 तो ये भी 150. वो कैसे? Z फॉर्मेशन. स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल. इफ दिस इज 150, दिस इज ऑल्सो 150. Z फॉर्मेशन. और Z फॉर्मेशन का असली नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये 150 हो गया. ये 30 तो ये 30. कैसे? या तो तुम Z बनाओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर 30 और C बनाओ 150 प्लस 30 180. दोनों चलेगा. वर्टिकली ऑपोजिट 30 का 30, वर्टिकली ऑपोजिट 150 का 150. So when one angle is given, you can find out all the angles. अब कुछ टफ करते हैं. A, B, C, D. कुछ नहीं आ रहा है. नहीं. ऑलराइट. अब टफ क्या करने वाले हैं? corresponding angles, but 1 is equal to phi या a is equal to b बहुत आसान होता है. We will write corresponding angles in the real geometry language. Please write with me and draw this figure also. Angle APY ये है is equal to angle CQY.
ये लिखने की आदत डालो। ए क्यू वाई, अरे ए पी वाई सी क्यू वाई, बट सी क्यू वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी क्यू पी। ध्यान से देखना, ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं। सी क्यू वाई और सी क्यू पी, एंगल तो एक ही है। सो सी क्यू वाई और सी क्यू पी दे आर सेम। Customer. Yep. सेकेंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल वाई पी बी। कहाँ है वाई पी बी? ये रहा। शुड बी इक्वल टू दिस, वाई क्यू डी। और वाई क्यू डी को मैं पी क्यू डी भी बुला सकता हूं। वाई क्यू डी या पी क्यू डी, क्योंकि सब एक लाइन में है। बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू एक्स। बी पी क्यू डी क्यू एक्स एंड एंगल ए पी क्यू is equal to CQX, APQ CQX. This is also possible, और ये ऐसे ही सम सॉल्व होंगे। तो ये लिखने की आदत डालो, 1 2 3 और ABC नहीं, एंगल के नाम। Alright, enough of corresponding angles. Let's write alternate interior angles now. Alternate interior angles which are always equal. तो Z फॉर्मेशन देखना होता है। तो एक Z फॉर्मेशन इधर है, ये which is A P Q D, एंगल A P Q is equal to एंगल P Q D। और दूसरा Z फॉर्मेशन इधर है, C Q P B, एंगल C Q P is equal to एंगल Q P B। C Q P Q P B, A P Q P Q D, alternate interior angles। और अब ये शॉर्ट, interior angle on same side of transversal, interior angle on same side of transversal जो इक्वल नहीं होते उनका टोटल 180 होता है और C फॉर्मेशन बनता है। तो ये C फॉर्मेशन बन रहा है A P Q C से। Therefore एंगल A P Q प्लस APQ plus PQC is 180 is the concept। और दूसरा C बन रहा है B P Q D। तो ये दो एंगल्स है, एंगल B P Q प्लस P Q D is 180। I hope you have understood this much। वर्कशीट में छोटे मोटे सम्स होंगे जहाँ पे मैं एक एंगल दूंगा और तुम्हें दूसरा एंगल निकालना है, और you have to give the reason। So you will figure it out। I will make the homework and send it across। Meanwhile, learn this concept properly, write it 2-3 times in your notebook, तो ही होमवर्क सॉल्व कर पाओगे। Thank you, bye।